ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਉ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਰ, ਕਿਉ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਰ, ਕਿਉ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਉ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਉ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਰ, ਕਿਉ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਰ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਉ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਕਿਉ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਵਿਸਮਾਦਤ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੌਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੌਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਥੰਮੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਿਡਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 40-50 ਸਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ 11 ਵਾਰੀ ਕਦੀ 51 ਵਾਰੀ ਪਰ ਡੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਸੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ 11 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 21 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ
ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਕੱਲਿਆਂ 56 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੀਬਨ 56 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 28 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਗਾਤਾਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸਨੇ 28 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 28 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਸਨਲ ਵਾਪਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 2 ਟਰਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਓ। ਦੈਨ ਇਟ ਟੁੱਕ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ। ਜਿਸ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆਈ, ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 18 ਟੀਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਨੀ ਵਿਸਮਾਦਤ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਨਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਰਥ ਸਹੀ ਹਨ। ਭਾਵ ਵੈਰੀ ਹੰਬਲੀ ਆਈ ਪੁੱਟ ਅਪ, ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਨਾਓ ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਟੂ ਮੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇਂ ਤੈਸੋ ਹੋਏ। जैसे भगवान जी को तू सेवता है, जिस तरह का तू रब तसव्वुर करता है अपने थॉट प्रोसैस विच, वैसा तू बन जाता है। ये मन जैसा सेवे तैसो होए, तेह कर्म कमाए, और वैसे डीड्स कर्म बन जाते हैं। दैट्स हाउ वी मैनीफेस्ट, दैट्स हाउ आवर बिहेवियर इज। बिहेवियर डिपेंड्स ऑन ਸੋਚਿਆ ਕੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ एग्जाम्पल, निक्की बच्ची कहती है, मम्मी जैसे आप कपड़े पहनते हो आपको पहनने नहीं आते, देखो चाची कैसे पहनती है, चाची के जूतों का रंग उसके पर्स के साथ मैच खाता है, मेरे को वैसे मैच वाले कपड़े पहनाया करो ना। ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ। ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। जैसी संगत वैसी रंगत। मैं शराबियां दे नाल बैठदा, शराबियां दा की रंग है? शराबी भी हम जैसे देखने में इंसान लगते हैं। मीन्स जदों मैं शराबियां नाल बैठा, जे शराबियां दा रंग मैनू चढ़ गया है तो मैं भी शराब पीना पसंद करांगा और मैं पीवांगा। जैसी संगत वैसी रंगत। इसका मतलब जिस कंपनी 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕੇ ਗੁਣ ਹੈ। भगवान एक है, सतनाम है, कर्ता पुरख क्रिएटर है, निरभव वो फियरलैस है, डरता नहीं है, निर्वैर उसका किसी से वैर नहीं है। पर ये सारे असीं जाणदे ही हाँ बस। इत्थों बोलिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आस जुगासा करदे जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल और तोलिया नहीं छोड़ते हुए असीं बाहर आते हाँ, साडा पूरा हो जाता है। पर विचारिया नहीं, साडी फिर एक पुस्तक आई पहली, रब्बी गुण, जिहदे विच असीं एक ओंकार तो गुरप्रसाद नूं ही विचारिया, सहजे सहजे समझ समझ के आस्ता आस्ता। रब जे एक है, मैं तो ड्यूअल परसनैलिटी हाँ, मैं तो डबल स्टैंडर्ड रहिंदा हाँ। दूजी गल, रब जे एक है, मैनू इंज लगदा वो एक, जे मैं वाहिगुरू नूं मनदा तां राम वाला रब मैं नहीं मनदा। राम वाला कहता है हम खुदा वाला रब नहीं मानते, खुदा वाले कहते हैं तुम्हारा हम राम वाला नहीं मानते हैं। तो रब जी तो एक ना रहे। ਇਹਦਾ मतलब रब एक है, मतलब कि तू एक रब समझ अते तू एक बन। सतनाम रब जी का नामना, नामना मीनस नियमावली, रब जी के गुण, रब जी की क्वालिटीज़, सब कुछ सच है। मेरिया क्वालिटी सच्चियाँ नहीं हैं, मेरा नामना, मेरा नियम ही ठीक नहीं है, मैं इनडिसिप्लिन रहता हाँ। ये गल करांगा तो मैं कुछ होर डिसिप्लिन रखांगा, ये रखांगा तो कुछ होर रखांगा। अमीर नूं मिलांगा तो मेरा डिसिप्लिन कुछ होर तरीके का होएगा, गरीब नूं नाल मिलांगा तो मेरा डिसिप्लिन कुछ होर तरीके का होएगा। गरीब नूं मैं टाइम दे के हो सकता लेट पहुँचा, अमीर नूं नहीं नहीं अगला काम आना है, डील मिलनी है, वक्त सिर पहुँचना चाहिए, पहले ही पहुँचा। मेरा डिसिप्लिन बदल गया ना, मेरे रंग बदल गए, मैं गिरगिट की तरह रंग बदल लेंदा। मेरा नामना ही नहीं सच्चा। रब जी सच्चे ने, सतनाम ने, तो मैनू भी सतनाम होना चाहिए। करता पुरख रब जी क्रिएटर ने, मैं कोई क्रिएटिव काम करता ही नहीं, करता पुरख है ही नहीं। मैनू समझाया गया, बाणी कहती है ए मन जैसा सेवे तैसो होए तेहे कर्म कमाए। मेरे रब जी तो बिल्कुल कंट्रास्ट च उल्टे कर्म हैं। सो गुरमत की भगती एक चौंकड़ा मार के, एक जंगल बैठ के, विआह ना करा के और कोई रिटर्न करना या माला फेरनी या तप करने, गुरमत की भगती नहीं है। गुरमत की भगती है जो रब्बी गुण हैं वो गुणा नाल तू जी। यह स्टेटमेंट मैं किवें दे लई, मैनू तो कोई अथॉरिटी नहीं है। बाणी कहती है, बाणी कहती है वीण गुण कीते भगत ना होए। रब्बी गुणा नूं तू नहीं जींदा, भगती नहीं हो रही। भावें जुबान तो तू की बोलदा, डजंट मैटर। चौकड़ा किवें मारदा, तेरा भेख केड़ा, इट डजंट मैटर। केड़े मजहब दा है, इट डजंट मैटर। करता पुरख ने रब जी, जे मैनू शौक चढ़िया, मैं रब जी नाल एक मिकता चाहता हाँ, रब जी दा मिलन मैनू पसंद है, एंड आई सिंसीयरली फॉलो रब जी। आई लाइक टू ज्वाइन रब जी दा देश। तो मैनू अपने अवगुण समझने पैणगे, अवगुण छड्डने पैणगे, रब जी दे गुण धारण करने पैणगे। तो जे रब जी करता पुरख ने तो मैं क्रिएटिव काम करया करा। लैग पुलिंग किसी दी ना करया करा, निंदा किसी दी ना करया करा। निंदा करन लई असीं क्रिएटिव थोड़ा ना होंदे, असीं डिस्ट्रक्टिव होंदे आ। दूजे नूं डिफेम करन दा मन अंदर ख्याल हुंदा है, क्रिएटिव नहीं। हाँ, जे रब जी क्रिएटिव ने, मैं करता पुरख बनना, और करता पुरख बनन वेले मनु ऐ नहीं फील करना मैं भगवान हूँ, मैं यहाँ का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान हूँ। नहीं, मीनस रब जी क्रिएटिव करते हैं दुनिया के भले वास्ते, चंद सूरज तारे हवा पानी बारिश सब कुछ देंदे ने। मैनू भी ना दुनिया के भले दे काम करने चाहिए ने। जो इंसान अपने घरों उठ के दुनिया के भले दे काम करन लग पैंदा है, उन्होंने दुख नहीं लगता।
कोई इंसान क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे कोई दुख नहीं है। हर इंसान ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝਾਂ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਤਜੋ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਨੇ, ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੋ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਿਰਭਉ, ਰੱਬ ਜੀ ਫੀਅਰਲੈਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਅਰਲੈਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਣੇ ਖਣੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਮਨ 'ਚੋਂ ਮਨ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾ ਦਈਏ। ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ, it is, we are vulnerable to have ਲੱਖਾਂ दुश्मन। ये पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारे कई दुश्मन होंगे, पर मन अंदर की धारणा है, ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बनाए। क्यों? क्योंकि बिसर गई मीन्स भूल गई, भुला दी, छोड़ दी। बिसर गई सब तात पराई, दूसरों से ये वैर रखने की, कंपटीशन की, बदला लेने की भावना की जलन छोड़ दी। तात मीन्स जलन, गर्मी, तपश छोड़ दी। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साथ संगत मोह पाई। जदों दी मैं सच दी संगत कीती है, मन करके जदों संगत करदे हाँ ਤਾਂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮੀਨਸ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਰੰਗ ਲਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਅਵਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੈਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਮ, ਵਾਈਸਿਸ, ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਪੁਸਤਕ ਆਈ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ। ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਰੱਬ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। एक गल वखरी है कि पता नहीं लगता इस दौर में, हर नई सदी में इंसान नया खुदा लाया। मनुख नवे कर्म कांड, नवे ढकोसले बना लेंदा है। पुराने ज़माने किवें सिमरन करता सी पता नहीं, अजकल सिमरन करता भी बत्तियां बुझा के करो। पुराने ज़माने बत्तियां ही नहीं होंदियां सन। हर सदी विच कर्म कांड और पाखंड बदल जाते हैं। हर सदी में इंसान नया खुदा लाया, लेकिन रब जी हमेशा सच्चे ने। और सच्चे ने तो एक गल सामने आई, असी तो कह रहे सी कि रब जी ये सृष्टि झूठी है। हर धार्मिक स्थान पर यह पढ़ाया जा रहा है, ये सारी सृष्टि झूठ है। पति झूठ है, पत्नी झूठ है, बच्चे झूठ है, सोना झूठ है, माया झूठ है, पैसा झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। इसको छोड़ के जंगल में चले जाओ। अगर सब कुछ झूठा है सृष्टि में, तो जंगल भी झूठा है ना। खैर, हमेशा सिखाया गया ये सब कुछ झूठ है, पर बाणी पढ़ रहे हैं आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। और फिर पढ़ते हैं आप सत किया सब सत। रब जी सच्चे ने और उन्होंने सब कुछ सच्चा बनाया। तिस प्रभ ते और रब जी तो सगली उत्पत्त, ये सारी सृष्टि रब जी की बनाई है, झूठ कैसे हो सकती है।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੰਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਗ ਰਚਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੁਛ ਗਲਤ ਮਲਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਗ रचना सब झूठ है जान ले और मीत। ओए मेरे मन, तू जो थॉट प्रोसेस बनाता है वो झूठ है। तेरे थॉट प्रोसेस में तू लोगों का बिगाड़ करता है, तेरे थॉट प्रोसेस में तू दूजे का भला चाहता नहीं है, तेरे थॉट प्रोसेस तू दो भरावां नूं लड़ा के खुश होना है, तेरे थॉट प्रोसेस नूं सस इकट्ठे बह जान तैनूं चंगा नहीं लगता। हर गल ते तैनूं डिस्ट्रक्टिव गल्लां पसंद हैं और किस तरह मैनिपुलेट करना है, यह सारी खेड दुनिया दे विगाड़ वास्ते जो तू करता है, ये जग रचना सब झूठ है। जग मीन्स तेरा थॉट प्रोसेस, रचना मीन्स द मेल फंक्शन इज गोइंग ऑन एंड वट सो एवर यू प्लान इज झूठ। जैसी रच रच बांधत पाग तू अपने थॉट प्रोसेस जो गलत गलत स्टैप्स सोचता है, पाग मीन्स पगड़ी नहीं, पाग मीन्स स्टैप्स, हाउ टू बी डिस्ट्रक्टिव, किस तरह किस नूं लुटना है, किस तरह किसी की बर्बादी करके प्रूफ मिटाने हैं। जैसी रच रच बांधत पाग सो सिर चुंच सवारें काग, तैनूं कां तंग करनगे जींदे जी मरण तो बाद नहीं। सो असी इस तरह करते हुए समझी जा रहे सी, सानू इस तरह महसूस हो रहा सी कि ਇਹ जपजी साहब मैनू कुछ समझा रहे हैं। जपजी साहब की पहली पौड़ी आई, पहली पौड़ी की आखिरी पंक्ति विच सवाल रखा गया कि मैं सोचना भी जे सोची लखवार, जे मैं सुचमता बड़ी करदा, सोच डज नॉट मीन थिंकिंग। गुरबाणी सोच का मतलब होंदा है सुच पिट, पवित्रता अपवित्रता। शौच आल है तो शौच करना, अपनी पवित्रता करनी। असं समझते मैंने हाथ धो लिए बड़ा पवित्र हो गया, नलका धो लिया, स्वा से मांज लिया, बड़ी पवित्रता कर ली, इसको टच नहीं करूँगा ये अनटचेबल है, और अपनी पवित्रता करनी पर मन सुच्चा ना होना। पर गुरु पातशाह कहते ने मन मैले सब कुछ मैला, तन धोता है मन अच्छा ना होए, सुचे ना आखियाँ बैंजे पिंडा धोए। जो पिंडा धो लेंदे ने वो सुचे नहीं हो सकते ने। सुचे ए ना आखियाँ बहन जे पिंडा धोए, सुचे सही नानका जिन मन वसिया सोए। जिन्हां दे मन विच रब जी वसते ने वो सुच्चे होंदे ने। नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना, साबन से सूची पई नहीं होती है। सच नाल जे तू जुड़िया है तो सुच्चा है। सो मन मैले सब कुछ मैला, तन धोता है मन अच्छा ना होए। मन साफ नहीं होगा चाहे तू लाखों तीर्थों पे नहाने जा, तीर्थां ते नहाण नाल मन सुच्चा नहीं होंदा। सोचा सोचना भी, सोच करने से सुचता नहीं होती है। सोचा सोचना भी जे सोची लख वार लखां वारी, चुप्पे चुप ना होवी, चुप रहण नाल चुप नहीं होंदी। चुप्पे चुप ना होवी जे लायरां अवतार, भुखिया भुख ना उतरी, मन ना रजिया होवे। जिन्हां दी भुखियां आत्मावां होण वो नहीं रजदे ने, कदे नहीं रजदे ने। और भुखियां आत्मावां दा चारों पासे असीं अपना समाज देख रहे हाँ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੁੜਮ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਰਮ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਭੁੱਖੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾਜ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੁੱਖੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੁੱਖੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਭੁੱਖ ਕੱਟ ਲਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਉਤਰਦੀ।
तो जे मैं सोचा कि मैंने तो व्रत रखा है पति को लंबी उम्र करने के लिए, तो मैं ताज़ा सुनिया है कि वो पत्नी बोल रही है उन्होंने भुख देखो, कहती है मैं हर साल रखती हूँ व्रत आपके लिए और आपकी उम्र मेरे व्रत के कारण लंबी होती है। अच्छा मेरे को डायमंड का हार ले दो। पति कहता नहीं इतने तो पैसे नहीं हैं। तो कहती व्रत तोड़ूं? व्रत मेरे तोड़ने से आप मर जाओगे। पर उसके व्रत के पिछे की है, सस नूं चाबी नाल मैं घुमाना है, पति नूं चाबी नाल मैं घुमाना है, पर पिछे भुख है मेरे को डायमंड का हार लेके दो। डायमंड दे हार दी भुख, भुखियां भुख ना उतरी। जे बन्ना पुरियां पार, दुनिया भर का साजो समान साढ़े कोल है, पर साड़ियाँ आत्मावां भुखियां ने। इसी करके असी मुंडे वाले अखवा के दाज ले बगैर छड्डदे नहीं हाँ, और समाज दे अंदर प्रवानगी लैन वास्ते शराब का गिलास खड़काते ही हाँ, और सानू चुकण वाले मिल जाते हैं। ओ जी अगर जे तुसी शराब ना वरताई तां, वो जे कुड़म या जवाई अपनी ले आए तां। यह गल्लां मैं इंज ही सुनिया, इस करके मैनू उस अदा च ही करन च मज़ा आता है। तो की हो जाएगा? जिहड़ा लियांदा पिया लियाए, असी उन्होंने मना कर सकते हैं, वध तो वध बुरा मना देगा, वध तो वध अगली बारी अपनी नहीं लियाएगा या आएगा नहीं। ऐसे मित्रां नूं, ऐसे रिश्तेदारां नूं रिश्तेदार और मित्र कहते ही नहीं हैं, जिहड़ा तुहाडे आइडियल्स जिहड़े तुहाडे नहीं हैं सारे समाज के भले वास्ते, जिहड़े आइडियल्स का ध्यान नहीं रखते, तुहाडे प्रिंसीपल्स का ध्यान नहीं रखते, ऐसे ब्लड रिलेशन और ऐसे सो कॉल्ड फ्रेंड्स आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर एनीमीज़। तो पिछे मेरे वीर मैनू कहते हैं, वीर जी जेकर असी मान लिया बच्चे का बर्थडे भी मनाइए और असी उहदे विच ना रखीए तो की करिए? मैं कहा तुसी बर्थडे नहीं, जिहड़ी भी सैरेमनी मनाओ, तुसी कीर्तन कराओ और कार्ड पे छापो, वहाँ पर उसके बाद लंगर होगा। तो लंगर में तो कोई हिम्मत कर नहीं सकता कि घर से अपनी शराब लेकर आए। आपे पौड़ा मुक जाएगा कि हाय जे जवाई या कुड़म अपनी लैके आए तो साड़ी की रहेगी। अच्छा तुहाडी शराब वेचन नाल, शराब वरतान नाल ही इज्जत पूरी होती है। सो भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पार, सह सियाणपा लख होए। सह सियाणपा का मतलब है जितने मर्जी दुनियावी कर्मकांड पाखंड तू कर लै, सह सियाणपा लख होए तो एक ना चले नाल, तेरे नाल नहीं चल सकते ने। नाल किथे जाना है? मरने के बाद नहीं। जींदे जी वननेस विद गॉड यू कैन नॉट एंजॉय। तू ये मान नहीं सकता वननेस विद गॉड दी अवस्था, एक्सटेसी, सुख, चैन, आत्मक शांति, विगास, खेड़ा, हैप्पीनेस, खिड़िया मत्था, ए तेनू प्राप्त नहीं होएगा। सह सियाणपा लख होए तो एक ना चले नाल। फिर सवाल उठया, फिर ए सारा कुछ मैं करदा हाँ, क्यों सचियारा होइए? मैं सचियारा किवें बना? हंबली पुटअप किया गया है, मैं सचियारा नहीं हाँ। असी तो गुरुद्वारे आंदे ही ये समझ गया मैं तो ऑलरेडी सचियारा हाँ। गुरुद्वारे सचियारा बन के नहीं आंदे हाँ, गुरुद्वारे सचियारा बनन आंदे हाँ। गुरुद्वारे सियाणा बन के नहीं आते हाँ, गुरुद्वारे इयाणे तो सियाणा बनन आते हाँ। मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं इयाणे, तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा, जिन हर उपदेश दे किए सियाणे। असी इयाणे तो सियाणा बनन आते हाँ। इयाणे तो सियाणा बनदिया मूर्खता अज्ञानता तो विजडम लैके, गुर की मत तू ले याने। मैं आ जावा और चला जावा, आ जावा और परिक्रमा करके घूम फिर के चला जावा। तुसी अपने बच्चे नू स्कूल पाना और कहना स्कूल जहाँ टीचर बैठा होगा ना उसके पीछे से बेटा घूम के आ जाना बस।
और सारी किताबों कापियों को धूप अगरबत्ती कर देना और मैं हार खरीद के लाऊंगी, बेटा उसको पा दिया करना, पढ़ना नहीं, समझना नहीं। और ये भी की सिस्टम चल पिया भी ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਛੋੜ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵੈਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਦੇਅਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਔਰ ਪਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਈ ਸਰੈਂਡਰ ਮਾਈ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਮਤ रखता हूँ सर, आपकी ज़्यादा है, तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम। अपनी मत रखते हाँ और गुरु की मत लेंदे हाँ। यह मत्था टेकण दा भाव है। लेकिन पहली बारी जिहड़ा टेकिया उहदे ते आप ही विश्वास नहीं है, रखा और उठा लिया। ऐसे तो तू 100 बारी रख ले, उधर से रख ले, फिर इधर से रख ले, फिर इधर से घूम के रख ले, फिर पीछे से रख ले। अग्गों से रखा प्रवान नहीं है तो पिछों से रखा होया कैसे प्रवान हो जाएगा। पता नहीं किस तरह है साढ़े भुलेखे और कर्म कांड वधदे जाते हैं। वी बिलीव इन घूमो चारों पासों पर मत लवो ही ना। असली परिक्रमा होंदी है मेरा मन मेरे सतगुर दे ख्यालों के आस पास ही फिरदा रवे, इनू परिक्रमा कहते हैं। हर वेले फोकस्ड अपने सेंटर ते, मेरे रब ते, मेरे गुरु जी ते, इनू परिक्रमा कहते। पर सानू आदत पै गई है देखा देखी। जिसनों गुरमत समझ आ जाएगी वो एक बारी मत्था टेकेगा और टेक के बड़ी नम्रता नाल एक जगह बैठ जाएगा। क्यों? सुनने आए हैं या घूमने नहीं आए हैं। सुनने आए हैं, लोगों को दिखाने नहीं आए हैं। मेरी ये आदत सी ਜਦੋਂ मैं रजौरी गार्डन रहंदा सी, मैं बाहरों आया, मैं पौड़ियां तो मत्था टेकिया, बाहरलियां पौड़ियां तो फिर नलके दे कोल मत्था टेकिया, फिर नलके तो बाद जोड़ियां दे उत्थे मत्था टेकिया, फिर जोड़ियां तो बाद गुरुद्वारे दी एंट्री दी दहलीज ते मत्था टेकिया, फिर उस तो बाद अंदर आके इत्थे खड़े होके लंबी अरदास कीती, फिर मत्था टेकिया, फिर बीबियां वाल मत्था टेकिया, फिर बंदियां वाल मत्था टेकिया। सारे देखो मैं आ गया हूँ और देखो मैं कितना धर्मी हूँ, मैं कितने लंबे लंबे मत्थे टेकता हूँ। और जो संगत चो कोई भी नहीं सी होंदा, मैं अंदर जाके फटाफट इंज करके कर दिंदा सी। पर जे संगत होवे तो मेरी 10-15 मिनट की लंबी अरदास होंदी सी। मेरे को कितनी सारी बाणी याद है, तू दागे अरदास मारी, तू ठाकुर तू पैर अरदास कर करके भी मैनू प्रवान करो। मैं बहुत बहुत शरीफ और बहुत पायस गुरमुख इंसान हूँ। फिर अपनी जगह पर जाके मैं सीधा सीधा जाता सी, पिठ नहीं सी करता, और उत्थे जाके बैठ के चारों पासे हाथ इंज करके उतों फिर मत्था टेकदा सी। फिर उठण वेले फिर मत्था टेकदा सी, फिर रखिया टेकदा सी, फिर घूम के जांदा सी, फिर चौर करदा सी, फिर परफ्यूम छिड़कदा सी और फुल सुटदा सी। ये सब कुछ करदा सी मैं। साध संगत जी, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। मनु गल समझ आई? मत्था टेकण का मतलब है अपनी मत रखनी है। सो नाउ आई एम लर्निंग कि मैं मत किवें रखां। मत रखण दी जात सीख रहे हैं। मत रखनी आ जाए सिर तर तली गली मेरी आओ समझ आ जाता है। क्यों सचियारा हुई है, क्यों कूड़ है टुटे पाल। ए कूड़ दी पाल है। ईगो इज हिंड्रेंस, हर्डल बिटवीन मी एंड गॉड। रब जी और मेरे विचकार मेरी ईगो होम है, दीवार है। किवें टुटे? कहंदे ने हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈ। ਜੋ ਵੀ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕੂੜ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਕੂੜ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, जिस दी मंशा, जिस दी जाचना, humbly who wants to rectify his or hers deficiencies, shortcomings, वो डे बाई डे विरला बन रहा है और फाइनली कूड़ उतरन तो बाद वो विरला ही बन जाता है। सो असीं उसका नाम रखा विरला बनन वाला। विरला मन कोई बनन वाला।
ਵਿਰਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਨਨੈਸ ਵਿਦ ਗੋਡ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਸੌ ਰਹਿ ਵੰਜਣਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈਜ਼ कैपेसिटी टू हैव द वननेस विद गॉड सब्जेक्ट टू के अपने मन की मत ईगो होमै छड़। जो मिलना चाहता है मिल सकता है जे छड़ दिंदा है। इंज नहीं है देर आर ओनली फ्यू ब्लैसड पीपल जिहदे नाल संत जी बाबा जी ब्रह्मचारी जी ब्रह्म ज्ञानी जी असी रख दिता। हर कोई प्राप्त कर सकता है। पॉसिबिलिटी श्योर शॉट फॉर एवरी वन। क्यों? क्योंकि रब जी का बिरद है, क्वालिटी है गॉड दी। एक तिल नहीं पन्ने काले। रब जी स्पिरिचुअलिटी वाल एक भी पुट्टिया होया कदम जाया नहीं जान देंदे ने। श्योर शॉट रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं और वो बंदा एक कदम राइज कर जाता है, एलिवेट हो जाता है, अपने जीवन विच उचिया हो जाता है। इत्थों असी समझ के विरला बनन वाले दी क्वालिटी समझी कि वो पहला सुनता है, इस करके सुने दिया 4 पौड़ियाँ, फिर सुन के मनता है। जे असी सुनिए ही ना मनण दी अवस्था नहीं आ सकती। मनण तो बाद वो पता समझ आता उन्होंने कि चंगे गुण जे धारण करो है गॉड दे दरबार अंदर एक्सैप्टिड होंदे ने जींदे जी। 5 प्रवान 5 प्रधान 5 पावें दरगाह मान। जींदे जी अंदर दे रब जी की दरगाह च मान प्राप्त महसूस करता है। चंगे चंगे गुणां नूं, चंगे चंगे गुणां नूं लाल रंग कहंदे ने। सुंदरता का प्रतीक है लाल। सुंदरता के प्रतीक नूं लाल रंग कहते ने। जो लाल रंग लगाना चाहेगा वो सुंदर होगा। ये मन सुंदर अपना हर नाम मजीठे रंगरी, लाल रंग लाता है। सो लाल रंग सुंदरता का प्रतीक है। लाल रंग तिसको लगा जिसके वडभागा, वडभागा मतलब किस्मत में होगा, भागों में होगा तो लगेगा नहीं। जो लगाएगा, जो लगाने के लिए श्रम करेगा। इस करके साडे अज का जो टॉपिक शुरू होगा धर्मखंड ज्ञानखंड श्रमखंड। श्रमखंड मीन्स वो मेहनत करेगा। जो भी मेहनत करेगा वो वडभागा बन ही जाएगा और वडभागा जो बन जाएगा वो लाल रंग के जोगा हो जाएगा। मीन्स वडभागा का मतलब गुरबाणी च है जो सच सुन के मन लवे। सुनिया मनिया मन कीता भाओ। वो प्यार नाल सुन के मनेगा और मन के चंगे चंगे गुण। 5 प्रमाण डज नॉट मीन 5। 5 मीन्स चुन चुन के अच्छे अच्छे गॉडली क्वालिटीज़, आइडियल्स, वर्च्यूज़ नू फॉलो करेगा, करता है और रब जी दी दरगाह डे बाई डे प्रवान होंदा जाता है। असी कंपेयर करना है, मैं प्रवान होना चाहता रिश्तेदारां दी नज़र विच, बरादरी दी नज़र विच, लोकां दी नज़र विच। वर्सिस मैनू रब्बी गुण गॉडली क्वालिटीज़ धारण करनियाँ चाहिए क्योंकि मैं अपनी रब जी के दर च प्रवान होना चाहता हाँ। एंटायरली डिफरेंट थाट प्रोसैस। जिन्हों ये गल समझ आ जाएगी वो लोकां दी बरादरी दी नज़र च प्रवान, सोसाइटी दी नज़र च प्रवान होना नहीं चाहेगा। वो सच नू फॉलो करेगा, जगत की भेड़ा चाल पीछे नहीं टुरेगा। इस तरह करते करते असी समझिया कि उसनू विकारां नाल कॉम्बैट करन दी जोध महाबल सूर दी अवस्था प्राप्त होंदी है
ਉਹ ਯੋਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਈਸਿਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਮਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮੁੱਲ ਹਨ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਪੇ anywhere, there is no store, no shop, no mall, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਵਿਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਿਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਿਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਬਰ ਵਿਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਵਿਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬਾਏ ਫਰੋਮ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹਾਇਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ, ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਆਈਟਮ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੂੜ, ਆਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਪੇ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਡਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਏ ਨਾਈਸ ਵਪਾਰ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਰੱਖ ਦੇ। ਜਿਤਨਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਬਾੜ ਰੱਖ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ, ਜਵਾਹਰ, ਮਾਣਿਕ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੈਲਿਊਏਬਲ, ਇਨਵੈਲਿਊਏਬਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਚਨ ਸੋ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਇਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। तुमने कल मुझे गाली दी थी और मैंने नहीं दी। मुझको जो चैन आया, स्वाद आया, मैं अपना गुण ये संभाल के रखूँगा। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਜੀ ਗੋਡਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ ਜੀ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਪਾਰਾ। ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਣ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੇਸ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ, जुग जुग एको वेस। आदेश तिसै आदेश, आदेश तिसै आदेश। ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੁੰਦਾ, ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਰਮ, ਪਚੋਲੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਿਰਲਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਦੇ ਗੁਣ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਦਰ 'ਚ ਰੱਬ ਜੀ ਗੁਣ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਕੀ? ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ गुण। सब कुछ डज नॉट मीन फरारी कार, सब कुछ डज नॉट मीन भगवान जी के घर में मर्सिडीज़ कार खड़ी है। सब कुछ डज नॉट मीन कि मेरे मकान की सीमेंट और लोन खड़ा हुआ है। सब कुछ का मतलब सदा सिफत सलाह तेरी। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਲਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਪੈਰ ਸੋ। ਕੈਸੀ यूनिक लड़ी चलती आ रही है, ਮੈਨੂੰ याद नहीं रखनी पै रही। जो जपजी साहब पढ़िया, पहली पौड़ी तो दूजी पौड़ी, दूजी तो तीजी, 38 पौड़ियां में यूनिक लड़ी परोती हुई है। एक यात्रा है कुड़ियार तो सचियार बनन दी। काश असी इस तरह विचार के देखिए। फिर भी मैं क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे कीते हुए अर्थ सही ਹਨ, बाकियां दे मैं गलत नहीं कह सकता। ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਤੁਸੀਂ 4 ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। अल्टीमेटली यू आर बाउंड टू हैव द पीस कि मेरे को किसी हालत में अब शांति चाहिए, चल यार माफ किया, अच्छा यार अब कब तक तेरे साथ कौन मत्था लड़ाता रहे, यार तेरे को तो लड़ने की आदत है, मैं तो थक गई। करांगे ना। जदों मन ये डिसाइड कर लवे कि आई डोंट वांट टू फॉलो दिस ईवल प्रैक्टिस एनी मोर, ओनू कहंदे ने 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए, 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मटिया, इतनक खटिया गठिया मटिया, संग न कछ ले जाए, संग न कछ ले जाए, 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए। फिर लोग मैनू आके सांझ करते हैं, ओ वीर जी मैं पहले ना कोई गाली निकालता था, मैं बर्दाश्त नहीं करती थी, मैं उसको 4 निकालती थी। कोई बंदा कहता है कोई मेरी इस बेइज्जती कर दिंदा सी ना, मैं खड़े पैर ओदी जो तक बदला ना लै लवां, ओनू एक दियां 4 ना सुनावां, मनु चैन नहीं सी आंदा। बाद विच पता लगा चैन नहीं आंदा, बेचैनी हो जाती है। और जदों कदों भी तुसी सुनना, नोटिस करना, एक वड्डा एक छोटा ये दोनों लड़ रहे हो ना, तो सारी दुनिया वड्डे नू पकड़ के कहती है वो तो बेवकूफ़ था, वो तो अनजान बच्चा था, तुम क्यों उसके साथ लड़े, इंज कहते ना। तो मैं जे ज्ञान करके, उम्र करके, पढ़ाई करके, डिग्रीज करके और अपनी प्राप्तियों करके उच्ची बरादरी वाला वड्डा वड्डा बना, और एक मूर्ख दी गालां कड्ढण वाली प्रैक्टिस मैं करा, तो फायदा की होया। अल्टीमेटली मन डिसाइड करता है नहीं यार ये गलत गेम है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। एक बीबी जी आके मनु कहते ने मैं एक पुस्तक पढ़ी, वो पुस्तक पढ़न तो बाद मेरी आदत छुटी कि मैं पुस्तक इच पढ़िया कि एक अमीर आदमी जहाँ कहीं भी दुकान पर उसकी पत्नी कुछ खरीदने जाती है, पत्नी को बढ़िया साड़ी लेके देता है, उसको डायमंड की रिंग लेके देता है, जो वो मांगती है उसको लेके देता है। पर पत्नी को एक आदत थी, अगर आलू वाले की रेडी से आलू खरीद लिया तो 2 आलू ऐसे ले लेती थी, ऐसे गाजर उठा लेती थी और कच्ची खानी शुरू कर देती थी, और कुछ ना कुछ उठा लेती थी। तो पति इस गल नूं नोटिस करता सी, पत्नी नूं ना पता लगे, दुकानदार नूं ना चुभे, उन्होंने बाद विच एक्स्ट्रा पैसे दे के आंदा सी। ये कहती है मैंने जब ये आर्टिकल पढ़ा कि एक पति ऐसे करता है अपनी पत्नी को बचाने के लिए और दुकानदार उससे लड़कर उसकी बेइज्जती ना करे, कहती माय गॉड वीर जी मैनूं ये गल समझ आई तो मैं अपनी आदत छोड़ी। ਇਹਦਾ मतलब मन हर किसी का हैप्पीनैस, वननेस विद गॉड, ट्रू पाथ चाहता है, पर समझदा अपने आप में बड़ा सियाणा है खलनायक, समझदा नायक है विलन, मानता अपने आप को हीरो है। ए चतराई सियाणपा किते कम ना आईयां। साडा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा मैं दुश्मन हाँ, क्योंकि मेरे मंदे ख्याल मैनू डिस्टर्ब रखते हैं। खंजर की क्या मजाल जो तुझे घायल कर सके, ये तेरे अपने ही है ख्याल जो तू घायल हुए जा रहा है। अपने ख्यालों नाल असीं ज़्यादा घायल होंदे हां, फिर दूजिआं नूं करदे हां। जितने मेरे आस पास रहंदे ने वो बाद विच मेरे कोलों डिस्टर्ब होंदे ने, पहलां मैं डिस्टर्ब होंदा हां ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਨ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਅਕਲ नहीं है, इस करके गुरु की मत लैनी पैंदी है। कोई पूछे धर्म का रास्ता क्यों अपनाना, अरे तुम मत अपनाओ कोई बात नहीं,
पर शैतानियत अगर छोड़ना चाहते हो तो तुमको धर्म का रास्ता अपनाना पड़ेगा, भावे भगवान को मानो या ना मानो। कोई जबरदस्ती किसी को नास्तिक से आस्तिक नहीं बना सकता, और कोई जबरदस्ती कर्म कांड करके आस्तिक नहीं बन सकता। अपने आप को आस्तिक कहलाना और मैं बड़ा पायस हूं, मैं बहुत शरीफ हूं, इस तरह कहण नाल तिसै भलाई आपस को जो भला कहावै तिसै भलाई निकट ना आवे। जो अपने आप को बड़ा भला भला और शरीफ शरीफ समझता है ना, उसके पास नजदीक भी नहीं आती है भलाई और शराफत। आपस को जो भला, मैं जान के कमांदा क्योंकि बीबियां सुखमनी साहब ज्यादा पढ़दियां ने, आपस को जो भला कहावै तिसै भलाई। तो हुण अगों तो असी किसी बीबी दी लैग पुलिंग नहीं करांगे, किसी नूं कहांगे फलानी इंज है, फलानी इंज है, फलानी इंज है, इंज नहीं करांगे, उछा देंगे सब नूं। खैर वो चंगे चंगे गुण संभालता और चंगे गुणों का वेश धारण करता है, उन्होंने कहते ने जुग जुग एको वेश, हमेशा वास्ते रब्बी मिलन का रोब ऑफ ऑनर पाता है। ये पाण सर ना उन्होंने एक गल होर समझ आती है कि यह वाला जो मैनू वेश सच का प्राप्त होया है, यह कर्मां कांडां नाल गिणतियां मिणतियां दे पाठां नाल रटन नाल नहीं प्राप्त होया। इस करके वो अगली पौड़ी के अंदर करता है, वो पौड़ी नंबर 33-34, एक दू जीबों लख हुए 32-33-34 कि एक जीव दी नाल मैं लख लख गेड़ा आखिए रख वारी रब लखा वारी रब दा जे ना लवां, एक दू 1 से 2 जीबों जीव 1 से 2, एक दू जीबों लख हुए और लाख हो जाए, लाख हो लख 20 लाख जीबे हो जाए तेरी, उन्होंने समझ आ रही है उड़ियार तो सचार बनने वाले मन। एक दो जीबो लाख होए लख 20 लाख लाख गेड़ा आखी है, और इनके साथ लाखों बारी कह ले तू, एक नाम जगदीश भगवान का, एक नाम तू ले भी ले, एतरा पत पौड़ियाँ तू सोचता है इस रास्ते पर इस पौड़ियों पर चढ़ने से मैं चढ़िया है कि इस भगवान से एक हो जाऊंगा। ये तो ऐसे हो गया अनहोनी गल, कीड़ियां नू आसमान ते चढ़न दी रीस आवे, सुन गल्लां आकाश की कीटां ही रीस। हुण कहंदे ने उन्होंने यह समझ आया कि गिनतियाँ मिनतियाँ करना, इतने लाख कर लिए, इतने 101 अखंड पाठ रख लिए हमने, इतने 51 पाठ रख लिए हमने, 5 लाख ऐसे पाठ कर लिए, इतनी माला फेर ली है। गिनतियाँ मिनतियाँ कूड़ियां दी ठीस होंदी है, गिनतियाँ मिनतियाँ च ना पिया कर, नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस। अगों नूं समझांदा आखण जोर, चुपे ना जोर, जोर ना जीवन मन ना जोर, जोर ना राज माल मन शोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जबरदस्ती ना सुरत टिकती है, मेडिटेशन जितना मर्जी कर ले, जोर ना जुगती छूटे संसार, छोड़ने से भी संसार छूटता नहीं है, रिनाउंसिंग करने से नहीं छूटता है। मैं एक संत जी ने सुनिया, कहते मैं जदों दा धर्म दा राह फड़िया है ना, मैं घर बार छड़ के लखां नूं लत मार के आया। मैं सोच रहा सी लत मारी है कि तुहाडी लत नाल लख चिपक गए ने, बिकॉज यू आर काउंटिंग। जोर ना जुगती छुटे संसार, जिस हथ जोर कर वेखा सोए, नानक उत्तम नीच ना कोई। इस तरह नीच तो उत्तम नहीं बनया जाता, इस तरह कूड़ तो नहीं छुट्टीदा। उसनों एक गल समझ आती है और वो नीच तो उत्तम बनन वाली सतगुर की मत लैंदा है कूड़ तो छड्डण दी, और उसनों बाहरलियां रातां रुतां तो इलावा अंदर दियां रातां रुतां समझ आनियां शुरू हो जांदियां ने, और उसनों काया अंदर सब कुछ वसै, खंड मंडल पताला अंदर दे दिन रात, अंदर दे चंद सूरज तारे और अंदर दे खंड मंडल पताल समझ आने शुरू हो जाते हैं। राती रुत्ती थित्ती वार पवन पानी अग्नि पताल, पवन कहते हैं उन्होंने गुरु रूपी पवन अंदर दी समझ आ जाती है, संतोख रूपी पानी समझ आ जाता है, और अंदर दे जे मंदे मंदे ख्याल होंदे ने वो पताल बारे समझ आ जाती है। पौन पानी नहीं पताल, तीसरी धरती थाप रखी धर्मशाला, उसमें समझ आ जाती है यह धरती जिस है बाहरली सृष्टि मैनू जीवन मिले धर्म कमाउण दा, इस तरह अंदर दी धरती विच मैनू धर्म कमाउणा है। उस सारी पौड़ी पढ़न तो बाद असी उसदे अंत ते पहुँचे और उहदे च आया, कच पकाई उत्थे पाए नानक गया जापे जाए।
ਸੋ ਵਿਰਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਿ ਕੱਚੇ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਾਨਕ ਗਿਆ, ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਨਕ ਗਿਆ, ਐੜਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ, ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਟੁਰੀਏ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਈਦਾ। ਔਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੰਸ ਯੂ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲਸ ਦੈਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੰਧਾ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਚੈਨ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ दिन ਵਿੱਚ 10 वारी कहते हो आज ना वहाँ पर एक सड़क पार कर रहा था, मम्मी मैंने उसको सड़क पार कराई, उसने मेरे को बड़ी असीस दी, मैंने सोचा हाय अच्छा हुआ अगर मैं ना कराती वो बेचारा कार के नीचे आ जाता, पर उसको कोई ना कोई तो पार करा ही देता। थैंक गॉड, गॉड ने मेरे को आज कीमती काम के लिए चांस दिया। कितना स्वाद आता है whenever we do the godly qualities वाले क्रिएटिव कर्ता पुरख वाले गुण ना, बहुत स्वाद आता है, चैन आता है, स्वाद आता है, आनंद आता है। एक माँ मैनू कहती है मेरा पुत्र ना मेरे घरों लड़ के रुस के चला गया, नाश्ता खा के नहीं गया, मैं बहुत परेशान सी। मेरे घर दे सामने ना एक बच्चा मैले कपड़े पाए हुए कूड़ा चुकन आया। मैं उसनू क्या बेटा कुछ खाया? कहते नहीं। कहती है मैं पूछया खाओगे? कहता हाँ। कहती मैनू उहदे चों मेरा पुत्र नज़र आया और मैं उसनू अपने पुत्र वांगू ही परांठा पका के उहदे ते मक्खन दी डली रख के खुआया। मैनू बहुत चैन आया, बहुत अच्छा लगा। शी फेल्ट touched as if she is feeding to God, not her biological blood related ਪੁੱਤਰ but ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੋ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਪ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਜਪ। ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪ ਹੈ। ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ, ਦ੍ਰਿੜ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 4 ਦੂਣਾ 8, 4 ਦੂਣਾ 8 ਰੱਟਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂ ਔਰ 4 ਦੂਣਾ 7 ਕਰਾਂ, 4 ਦੂਣਾ 8 ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰਾਂ, तब मेरा यहाँ पर रटा नहीं रह गया, दृढ़ नहीं हुआ। जो पढ़िया उसनू सुनिया, जो सुनिया उसनू फॉलो किया, इस कॉर्ड दृढ़ करना, इस कॉर्ड जप। वरना मैंने जुबान से भगवान जी का नाम लिया, गुरु साहब कहते ने काहे को कीजे ध्यान जपन्ना, जब ते शुद्ध ना ही मन अपना। तुम बाहर से रिटर्न करते हो, मन तो शुद्ध नहीं है। मन शुद्ध ना होए ना, दूजे दा बच्चा अपना बच्चा नहीं लगता। मन शुद्ध ना होए, तेर मेर दा झगड़ा रहता है। मन शुद्ध करना इज रब जी दा सिमरन, और रब जी दे सिमरन दियां बरकतां, रब जी दे सिमरन दे आफ्टर वर्ड्स जिहड़े रिजल्ट्स निकलते ने कि जे रब जी दा सिमरन करते हाँ, रब नूं याद रखते हाँ, तो मन नूं शुद्ध करते हाँ। शुद्ध करने का मतलब की है? अशुद्ध अवगुणी ख्याल छोड़े
ਔਰ ਗੋਡਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਧਰਮਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੌੜੀ ਆਈ 35 ਨੰਬਰ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਖੰਡ का ਇਹੋ ਧਰਮ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੀਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕੀਤੇ ਕਾਨ केते बर में काढ़त कड़ियाँ, रूप रंग के वेश, केतियाँ कर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल दे, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते तन समुंद, केतियाँ खाणी केतियाँ बाणी, केते पात नरिंद, केतियाँ सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत, नानक अंत न अंत। हुण असी इस पौड़ी अंदर एंटर करन तो पहला समझ लीए 35 नंबर है पौड़ी है। 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਧਰਮਖੰਡ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਕਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਧਰਮਖੰਡ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਿ ਧਰਮਖੰਡ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ का नाम नहीं है। नहीं है ना? धर्मखंड तो बाद आता है ज्ञानखंड। ज्ञानखंड भी कोई जगह का नाम नहीं है। अगर ज्ञानखंड किसी जगह का नाम नहीं है तो श्रमखंड भी किसी जगह का नाम नहीं है। तो उस तो बाद आता है कर्मखंड। कर्मखंड भी किसी जगह का नाम नहीं है तो ऑब्वियसली सचखंड भी किसी जगह का नाम नहीं है। ये मन दियां अवस्थावां हन। These are state of mind, मन दी अवस्थावां। धर्मखंड दी अवस्था किवें बनती है? जब मैंने सोचा मैं अपने अवगुणों से दुखी हूँ, इसका मतलब अवगुण रिकॉग्नाइज किए। पहला मन्या कि घट अब घट डूगर कणा एक निर्गुण बैल हमार। मैं जिस बैल के ऊपर सवारी कर रहा हूँ उसको गुण कोई नहीं है और बैल को गुण कोई ना होवे, कदे इधर जाएगा कदे इधर जाएगा, ऊपर पुट्ठा है कदे सीधा है, कदे सिंह घुमा देगा कदे कुछ कर देगा, इम्बैलेंस थानू चलाएगा, है ना। मन कर बैल सुरत कर पैंडा, ये वाला सानू सारा कुछ जीवन सीखना पएगा। चल रे बैकुंठ तुझे लतारो हिचे तब प्रेम के चाबुक मारो, वो वाली घोड़ी तैयार करनी पएगी, अपना बैल ठीक करना पएगा। काम करो तो ये करो बसोले गोडो धरती भाई, ज्यों गोडो तो तुम सुख पावो, कीर्तना मेटिया जाई।
ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ अपना बैल फिक्सअप कर, बैल ठीक कर। तेरा बैल चारों टांगों के ऊपर प्रॉपरली खड़ा नहीं हुआ। अगर 4 से 3 टांगे रह जाएं तो बैलेंस नहीं है, 3 से 2 रह जाएं तो और गड़बड़ होगी, अगर 4 से 3 गायब हो जाएं तो एक टांग बचती है। एक टांग के ऊपर खड़ा हुआ बैल तो बहुत ही मुश्किल रास्ता होएगा ना, डिफिकल्ट हो जाएगा। घट अब घट डूगर कणा एक निर्गुण बैल हमार, और डूगर होता है वेरी डिफिकल्ट। इस तरह का प्लेन टैरन ना होवे और ऊबड़ खाबड़ रस्ता होवे बड़ा, और पहाड़ी रस्ता होवे, और पहाड़ी रस्ते ते चलन वाला अंधा होवे, अंधा भी होवे और सिर ते वजन भी बड़ा सारा चुक्या होवे। वेरी डिफिकल्ट। कितनी डिफिकल्ट इक्वेशन हो गई। सिर के ऊपर लोग अवगुणा की बनना गंठड़ी, अपनी अवगुणा का ढेर सारा भार चुक्या होया है। अखा तो नज़र नहीं आता, रस्ता पहाड़ी है, डूगर वाट बहुत, अखी लोड़ी ना लहा हो चढ़ लंगा की, आंखें भी नहीं है। अब मैं चलूं तो कैसे चलूं, इतना मैंने अपनी डेफिशिएंसीज और शॉर्ट कमिंग्स का भार उठा के चल रहा हूं। मैं अपने आप ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਟੁਰਨ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਬੈਲ ਇੱਕ ਟੰਗ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਏਗੀ ਬੈਲ ਚਾਰੋਂ ਟੰਗਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਯੁੱਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ वो एक अपने युग नूं समझदा है, और फिर कल युग तो सत युग की अवस्था प्राप्त करता। उसका बैल धरती पर बैलेंस्ड खड़ा हो गया। किसका? जिसने माना कि मैं एक टांग पर खड़ा हूँ, जिसने माना कि मेरा कोई अवगुण है तो मैं छेती नाल अपसैट हो जाता। कोई जरा जी बेइज्जती करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई मेरे मुताबिक ना चले मैं अपसैट हो जाता हाँ। मनु गुस्सा बड़े जल्दी चढ़ता है, मैं लोगों की निंदा करता हाँ, मैं तेर मेर करता हाँ, मैं मेरी करता हाँ, मैं डिस्क्रिमिनेशन करता हाँ, मैं अमीर गरीब देखता हाँ, मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वितकरे करता। जिसनों यह गल समझ आ जाती है ना, वो समझ आता मैं कल युग में हूँ, कल वाले थॉट प्रोसेस में जीता हूँ। वो इसको छुटना चाहेगा। जो कल दी अवस्था तो छुटना चाहता है ना, उन्ना रस्ता लभदा है छूटू तो कैसे छूटू, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। जिसने अपने अवगुणा नूं महसूस किया कि क्रोध करने के बाद मेरा सिर दर्द होता है, क्रोध करते टाइम मेरी आंखें चढ़ जाती हैं, क्रोध करते टाइम मेरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, मैं शिवर करता हूँ और मेरा वॉल्यूम ऊंचा हो जाता है, और मैं सामने वाले की बेइज्जती कर ही देता हूँ। जिसनों एक ख्याल आ जाते हैं ना, वो इन्हां तो छुटना चाहता है। इस अवस्था नूं धर्मखंड अंदर एंटर करना कहते हैं, क्योंकि वो इस तो छुटना चाहता है। और साडी अवस्था किवें बनती है? एवरीडे बनती है। असी बीमार होए, ठीक नहीं हो रहे, साडी माँ कहती है, साडा पिता कहता है, जे माता पिता कोल ना होन, साडी पत्नी कहती है, पति कहता है, दादा दादी कहती, नाना नानी कोई भी कहता है, या असी आप ही कन्विंस हो जाते हैं यार मेरे को कोई डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, मैं इस बीमारी से बहुत परेशान हूँ। धर्मखंड अंदर एंटर्ड। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। वो धर्म खंड तो ज्ञान खंड अंदर किवें एंटर करता है? वो डॉक्टर को जाके कहता है डॉक्टर मैं बीमार हूँ, प्लीज़ बताओ, स्टेथोस्कोप लगाओ, बीपी चेक करो, सब कुछ करन तो बाद कहता है डॉक्टर उन्होंने डायग्नोज करता है आपको ये तकलीफ़ें। अच्छा आप बताओ, अपनी तकलीफ भी दसी, डॉक्टर ने भी डायग्नोज किया, एक्सरे हुई, टेस्ट होए, सारा तो बाद डॉक्टर को पूछता है अब सर बताओ ना कैसे ठीक होते हैं, ठीक कर दो ना, मेरे को आपके ऊपर पूरा विश्वास है। अपना ज्ञान खंड का आखो बताओ, कर्म अपना फलसफा, अपनी डॉक्टरी बताओ प्लीज़, कि मैं से ठीक कैसे हो जाऊं। जदों ये पुछदे आ ना डॉक्टर नूं, डॉक्टर प्लीज़ बताओ, साडा दृढ़ विश्वास होंदा है कि जो आप बताओगे मैं मानूंगा, जैसे कहोगे वैसे दवाई खाऊंगा, जो चीज़ें कहोगे परहेज वो सारे करूंगा।
ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੈਸੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ। और जो मैनू तुसी दसिया कि ये चीज़ें आगे फ्यूचर में तुमको नहीं खानी और ये वाली बदपरहेजियाँ नहीं करनी, वो सारियाँ करते रहना, हमेशा सच नू फॉलो करते रहना, कर्म खंड। और फिर जिहड़ी निरोग अवस्था प्राप्त करदियां कंप्लीट परफेक्ट हैल्थ सानू मिलती है ट्यून्ड विद विजडम दी, उन्होंने सचखंड की अवस्था कहते ने। जींदे जी शरीरक मरने के बाद वाले सचखंड की अवस्था नहीं चल रही है। सचखंड की अवस्था नू निर्वाण पद कहते ने, निर्वाण पद कहते ने। सचखंड की अवस्था नू चौथा पद कहते ने। सचखंड की अवस्था नू ही बैकुंठ कहते ने। सचखंड की अवस्था नू ही परलोक कहते ने, हैवन कहते ने, पैराडाइज कहते ने, जन्नत कहते ने गुरबाणी मुताबिक। मरने के बाद नहीं। सो धर्मखंड विच असी इन्हां दी पहलां जिहड़ियां अवस्थावां ने उन्हां नूं पुस्तक जो दृढ़ किया वो मैं उत्थे तुहाडे नाल सांझ करके अज इत्थे कनक्लूड करांगा। धर्मखंड की डिटेल विच असी कल रजौरी गार्डन डिस्कस करांगे। कूड़ कारण खुआरी महसूस करन दी जिहड़ी अवस्था हुंदी है उस तो छुट्टण दी जाचना तक धर्मखंड कहलांदा है। ज्ञानखंड धर्मखंड की जाचना का सदका कूड़ तो छुट्टण लई सतगुर के तत्त ज्ञान राही विवेक बुद्ध प्राप्त करना कि सर मेरे को बताओ ठीक क्या और गलत क्या है और आगे से क्या नहीं करना। भांडे विच तत्त ज्ञान पाउण लई अपना आप सरेंडर करना ज्ञानखंड। श्रम खंड जो दसिया उहदे ते मेहनत करनी। ज्ञान खंड विच हासिल कीते तत्त ज्ञान का सदका विवेक बुद्ध राही कूड़ निखेड़न की जाच, अवगुणी सुभाਅ तो छुट्टण की जाच अते उस चंगे गुणां उत्ते मेहनत करना ते चंगे गुणां दे सुभाਅ नूं निरंतर उद्यम करते रहना श्रम खंड कहलांदा है। कर्म खंड सतगुर दी मत रब दा करम कहलांदी है। फलसफा ग्रेस किरपा बख्शिश कहलांदी है। जिसनूं तुर की बाणी कहते ने उस अधीन रजा अनुसार टुरना कर्म खंड की अवस्था द्वारा दृढ़ता का सुभाव प्राप्त करते हैं। सचखंड निजकार अंतरात्मे च वसदे रब जी के दरबार विच रब्बी इकमिकता की कामयाबी प्राप्त करना, कूड़ तो छुट जाना, पूर्ण सचियार की अवस्था, रब नाल इकमिकता की अवस्था मिलन का सदका खोट खत्म, कूड़ तो सचियार हो गए। जाचना भी पहली पौड़ी जही कीती सी। डिमांड की सी कुड़ियार तो किवें सचियार बनना, बेनती ये कीती सी। जिस दिन इस तरह गुरुद्वारे आना शुरू कर देंगे ना साडा जीवन बदल जाएगा। वी डोंट कम टू गुरुद्वारा टू गेट द प्रमोशन, टू गेट द बोनस, टू गेट द धी पुत्र दा रिश्ता, टू गेट द मनी, टू गेट द लोन, टू विन द कचहरी का केस। असी इन्हां दुनियावी चीज़ों वास्ते नहीं आते। असी गुरुद्वारे आंदा मैनू अक्ल दिओ और मेरा अवगुण दूर करो, मैं अवगुण तो दुखी हाँ। सतगुरु जी की करेंगे अवगुण उत्ते कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारे। जो अवगुण की मांग यहाँ पर करेगा कि मेरे अवगुण छुड़ा दो, उसके अवगुण दूर कर ही देते हैं। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। नानक दास मुक्ते जो बोला इहा उहा अंदरों ते बाहरों सच्चा हो जाता है। इहा उहा आगे पाछे एथे उथे सचखंड बैकुंठ और इत्थे लोक परलोक ए सारी इको ही गल है। परलोक मीनस अंदर, लोक बाहर। इहा उहा अंदरों ते बाहरों उहदा रोग कट्टिया जाता है। एक रब विच समा जाना चंगे गुणा की सचारनता सचारा पूर्ण भगवत अवस्था की प्राप्ति।